हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें नेशनल करेंट अफेयर्स 17 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। On May 17, 2026, India categorically rejected an award issued by a court of arbitration (CAO) regarding a long-standing water dispute with Pakistan. Which of the following statement is correct regarding India's official stand and the treaty involved? Option A. India accepted the technical findings but rejected the legal validity of the court of arbitration. Option B. India stated that CAO was illegally constituted. Its jurisdiction is unrecognized and the award is completely null and void as India has placed the Indus Water Treaty in abeyance. Option C. India recommended shifting the dispute from the Court of Arbitration to the World Bank's Independent Permanent Indus Commission for final adjudication. Option D. India agreed to the CAO rulings specifically concerning the maximum pondage configurations on the eastern rivers. Option B is the correct answer. India stated that CAO, Court of Arbitration, was illegally constituted and its jurisdiction is unrecognized and the award was completely null and void as India has placed the Indus Water Treaty in abeyance. Option B. Indus Water Treaty. चलिए स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते हैं। इसका साइन कब हुआ था? 1960 सितंबर 19। कहां पर हुआ था? कराची पर 1960 में 19 सितंबर में साइन हुआ था। कौन किया था? इंडिया का पीएम जवाहरलाल नेहरू। और कौन थे? अयूब खान, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। ठीक, दोनों मिलकर साइन किए। इस ट्रीटी को वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था। इंडस वाटर ट्रीटी को परमानेंट इंडस वाटर कमीशन ने देखरेख करती है। चलिए नेक्स्ट। Option A. Consider the allocation of rivers under the Indus Water Treaty (IWT), which became a focal point of diplomatic contention on May 17, 2026. Which of the following allocations is correct? Option A. Eastern rivers Sutlej, Beas River, Ravi are allocated to Pakistan. Western rivers Indus, Jhelum, Chenab are allocated to India. Option B. Eastern rivers Indus, Jhelum, Chenab are allocated to India.
Option B. Western rivers Sutlej, Bias, Ravi are allocated to Pakistan. Option C. Eastern rivers Sutlej, Bias, Ravi are allocated to India for unrestricted use. Western rivers Indus, Jhelum, Chenab are allocated to Pakistan with limited Indian rights. Option D. All six rivers are jointly managed with equal volumetric water distribution, shares monitored by the World Bank. पहले ऑप्शन में ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर का थोड़ा चेंजेस किया है, थोड़ा ध्यान से देखिए। और ऑप्शन सी पूछ रहा है कुछ लिमिटेड इंडियन राइट्स है। ठीक, यहाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ईस्टर्न रिवर्स सतलेज, बियास, रवीज आर allocated to India for unrestricted use. Western rivers Indus, Jhelum, Chenab are allocated to Pakistan with limited Indian rights. Option C. यहाँ ईस्टर्न रिवर्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन है ईस्टर्न रिवर्स? सतलेज, बियास और रवि। और वेस्टर्न रिवर्स कौन कौन है? वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चेनाब। इसका कंट्रोल किसको मिला है? पाकिस्तान को मिला है, याद रखें। इंडिया के पास लिमिटेड यूज या पावर जनरेशन का राइट है। ठीक, IWT के मुताबिक टोटल पानी का लगभग 20% इंडिया को मिलता है और 80% पाकिस्तान को मिलता है। इसका ओरिजिन कहां पर पड़ता है? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कैलाश रेंज से निकलता है। मानसरोवर लेक के पास कैलाश रेंज से निकलता है। ठीक, चलिए During the special briefing by the Ministry of External Affairs on May 17, 2026, a historical cultural restitution by the Netherlands to India was highlighted. Which ancient Indian dynasties copper plates containing royal charters were returned? Option A. The Pallavas dynasties, charters of Mahendravarman Pratham. Option B. The Chola dynasty, charters of Rajendra Chola Pratham and Kulatunga Chola Pratham. Option C. The Chalukya dynasty, charters of Pulekesin II, Ditya. Option D. The Pandya dynasty, charters of Mahabharan Barman
राजसिम्हा द्वितीय। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर द चोला डायनेस्टी चार्टर्स ऑफ राजेंद्र चोला प्रथम एंड कुलोतुंगा चोला प्रथम। चलिए स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। चोला डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है? विजयालया चोला इसका फाउंडर थे। कब बनाया? 850 एडी में। इसकी कैपिटल कहां पर पड़ता है? तंजावुर। याद रखें, इसका कैपिटल, चोला डायनेस्टी का कैपिटल तंजावुर था। चोला राजेंद्र चोला प्रथम श्रीलंका को जीता था और उनका सबसे बड़ा टाइटल गंगईकोंडा था, जिसका मतलब कंकर ऑफ द गंगीस। याद रखें, राजेंद्र चोला प्रथम श्रीलंका को जीता था और उनका सबसे बड़ा टाइटल गंगईकोंडा था, जिसके मतलब है कंकर ऑफ द गंगीस। टू बी नोटेड, बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर का फेमस टेम्पल है। इसे राजा चोला प्रथम ने बनवाया था, जो राजेंद्र चोला के पिता थे। कौन बनाया था? ना राजा चोला प्रथम, जो राजेंद्र चोला प्रथम का पिता थे। ठीक, चलिए A landmark high-tech partnership agreement was signed on May 17, 2026 during the bilateral engagements between India and the Netherlands to boost India's domestic semiconductor ecosystem. Which two companies signed this agreement? Option A, Reliance Digital and Intel Corporation. Option B, Tata Electronics and ASML. Option C, Vedanta Group and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC. Option D, Infosys and NXP Semiconductors. Option B is the correct answer. Tata Electronics and ASML was signed on May 17, 2026 during the bilateral engagements between India and Netherlands to boost India's domestic semiconductor ecosystem. ठीक, ASML इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? बेल्दोवेन, नेदरलैंड्स। धोलेरा सेमीकंडक्टर प्लांट ये इंडिया का पहला मेजर कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब है। इसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक, कहां पर? ना धोलेरा, गुजरात। ये इंडिया का पहला मेजर कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब है। ठीक है, नेक्स्ट।
with reference to the India-Netherlands joint statement issued via PIB on May 17, 2026, which major European nations prime minister extended the official invitation to PM Narendra Modi, and what is his name? Option A, Prime Minister of the Netherlands, Mr. Rob Jetten. Option B, Prime Minister of the Netherlands, Mr. Mark Rutte. Option C, Prime Minister of Belgium, Mr. Alexander De Croo. Option D, Prime Minister of Germany, Mr. Olaf Scholz. प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स मिस्टर रॉब जेटेन। ऑप्शन ए। यहाँ नेदरलैंड्स की बात किया जाए, चलिए स्टैटिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखते हैं। इसका कैपिटल कहाँ पड़ता है? आम्स्टरडम। नेदरलैंड्स की कैपिटल आम्स्टरडम है। इसका कौन सा करेंसी चलता है? यूरो। यूरो चलता है यहाँ, याद रखें। आईसीजे नेदरलैंड्स के द हॉग शहर में लोकेटेड है, ठीक है। टू बी नोटेड, नेदरलैंड्स की कैपिटल आम्स्टरडम है, पर उनका पार्लियामेंट और गवर्नमेंट सीट द हॉग में है। कहां पर है? द हॉग। पर इनका कैपिटल कहां पर पड़ता है? आम्स्टरडम। इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आता है, लो कंट्रीज किसको कहते हैं? लो कंट्रीज। लो कंट्रीज किसको कहते हैं? बेल्जियम, नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग। ये तीनों को लो कंट्रीज कहा जाता है। इन्हें बेनेलक्स भी कहा जाता है। इन्हें और एक नाम से बोला जाता है कि क्या? बेनेलक्स, ठीक। नेक्स्ट, on May 17, 2026, the Netherlands officially announced its decision to join an India-led maritime framework and agreed to co-lead its capacity building and resource sharing pillar alongside Germany and the EU. Name this initiative. Option A, Security and Growth for All in the Region, SAGAR. Option B, Indo-Pacific Oceans Initiative, IPOI. Option C, Indian Ocean Rim Association, IORA. Option D, Asia Africa Growth Corridor, AAGC. Option B is the correct answer, Indo-Pacific Oceans Initiative, IPOI. चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। IPOI इसे 14th ईस्ट एशिया समिट 2019 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2019 में लॉन्च हुआ था। इसके टोटल 7 पिलर्स हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोलॉजी पर फोकस है। इसके रिलेटेड एक और पॉइंट आता है, सागर मिशन। सागर का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर। इसे इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था, ठीक है। और एक पॉइंट आता है IORA। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी इसका हेडक्वार्टर कहां पर पड़ता है? येवन।
मॉरिटियस, मॉरिटियस, ठीक। इंडियन रिम, सॉरी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर याद रखें एबेन मॉरिटियस में है, ठीक। चलिए, according to data discussed during the external sector and trade briefings on May 17, 2026, the Indian government moved to curb silver imports due to rupee stress, which geographical units within India are exempt from these restrictions, provided their goods are not sold in the domestic tariff area DTA. Option A, export oriented units EOUs only. Option B, special economic zone SEZs. Option C, free trade warehousing zones FTWZs only. FTWZs only. Option D, border hearts and land ports. Option B is the correct answer, special economic zones. इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। SEZ एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ऑफ इंडिया, कब पास हुआ था? 2005, 2005 में पास हुआ और ये 2006 से इफेक्टिव हुआ, ठीक। एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन EPZ 1965 में कांडला गुजरात में सेटअप किया गया था। कहां पर? कांडला गुजरात। एशिया का सबसे पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ। टू बी नोटेड की बात यही है कि बाबा कल्याणी कमेटी, इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। बाबा कल्याणी कमेटी, कल्याणी कमेटी बाबा कल्याणी कमेटी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी को स्टडी और रिवैम्प करने के लिए बनाया गया था। किसके लिए? ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी को स्टडी और रिवैम्प करने के लिए बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए, ठीक। नेक्स्ट, data released on May 17, 2026 indicated a severe external sectoral imbalance with gold imports surging. What was the total values of India's gold import for the complete financial year 2025-26 and what paradox did it showcase? Option A, $55.2 billion. Volume increased while global gold prices crashed by 30%. Option B, $71.98 billion. Import volume dropped by 4.7%, but total value rose sharply due to a 30% surge in global prices. Option C, $45 billion. Imports remained completely stagnant in both value and volume terms. Option D, $81.7 billion. Imports surged only because of a massive 50% spike in physical volume across all ports. यहाँ ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, $71.98 billion. Import volume dropped by 4.7%, but total value rose sharply due to a 30% surge in global prices. यहाँ टू बी नोटेड कुछ पॉइंट्स है, देख लेते हैं। इंडिया सबसे ज्यादा गोल्ड स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट करता है। कहां से?
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। याद रखें, गोल्ड इंपोर्ट बढ़ने से देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट खराब होता है। क्या खराब होता है? करेंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि फॉरेन करेंसी बाहर जाती है। वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। चाइना का पहला स्थान पर आता है। ठीक, पहले चाइना, फिर इंडिया। इससे रिलेटेड और एक पॉइंट है, क्या? आरबीआई ने फिजिकल गोल्ड डिमांड को कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजीबी स्कीम 2015 में शुरू की थी। याद रखें, एसजीबी स्कीम। एसजीबी स्कीम किसने बनाया? आरबीआई ने फिजिकल गोल्ड डिमांड को कम करने के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में शुरू की थी। 2015। कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के पॉइंट होता है जो आपको याद रखना होता है, एग्जाम पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, क्योंकि ये करेंट इवेंट्स से रिलेटेड है। ठीक, याद रखें, एसजीबी स्कीम 2015। नेक्स्ट, The bilateral agreement signed between India and the Netherlands on May 17, 2026 included an institutional arrangement to curb cross-border tax and trade fraud. What was the specific title of this agreement? Option A, Agreement on Mutual Administration Assistance in Custom Matters. Option B, Bilateral Investment Promotion and Protection Agreement, BIPA. Option C, Double Taxation Avoidance Agreement, DTAA Amendment Act. Option D, Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Option A is the correct answer. Agreement on Mutual Administrative Assistance in Customs Matter. Option A. यहाँ कस्टम मैटर्स की बात की है। कस्टम मैटर्स, चलिए थोड़ा स्टैटिक जी के पॉइंट से थोड़ा देखते हैं। इंडिया में कस्टम मैटर्स को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है। शॉर्ट फॉर्म में इसको सीबीआईसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ये क्या करता है ना? कस्टम मैटर्स को मैनेज करता है। टू बी नोटेड, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO का हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम। ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTA, ये कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से दो देशों के बीच एक ही इनकम पर 2 बार टैक्स लगने से बचा जाता है। क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट से 2 देशों के बीच एक ही इनकम पर
2 बार टैक्स लगने से बचा जाता है। याद रखें, इंटरनेशनल कस्टम्स डे हर साल 26 जनवरी को वर्ल्ड कस्टम डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल कस्टम डे कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। ठीक, चलिए। On May 17, 2026, PM Narendra Modi addressed the European Roundtable for Industry (ERT) interaction hosted by the Volvo Group. In which European city was this roundtable conducted? Option A, Stockholm, Sweden. Option B, Gothenburg, Sweden. Option C, Amsterdam, Netherlands. Option D, Brussels, Belgium. Option B is the correct answer, Gothenburg, Sweden. Option B. चलिए इसके बारे में थोड़ा स्टैटिक जी के पॉइंट से देखते हैं। गॉटनबर्ग स्वीडन का सेकेंड लार्जेस्ट शहर है और ये अपने लार्जेस्ट पोर्ट के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? अपने लार्जेस्ट पोर्ट के लिए जाना जाता है स्वीडन। इसका कैपिटल कहां पर है? स्टॉकहोम। स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम। और यहाँ की करेंसी क्या चलता है? क्रोना। स्टॉकहोम इसका कैपिटल है, स्वीडन का कैपिटल है और यहाँ स्वीडिश क्रोना चलता है। याद रखें, स्वीडन के पार्लियामेंट का नाम रिक्सडाग है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसका पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? सॉरी, रिक्सडाग। स्वीडन का पार्लियामेंट का नाम रिक्सडाग है, याद रखें। टू बी नोटेड, पीस प्राइज को छोड़कर बाकी सारे नोबेल प्राइज हर साल स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। स्वीडन में क्या करते हैं ना, पीस प्राइज को छोड़कर बाकी सारे नोबेल प्राइज हर साल यहां पर दिया जाता है स्टॉकहोम में। पीस प्राइज कहां पर मिलता है? ओस्लो, नॉर्वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पीस प्राइज को ओस्लो, नॉर्वे में मिलता है। ठीक, ठीक, चलिए नेक्स्ट। During the European Roundtable for Industrial ERT on May 17, 2026, Prime Minister Modi highlighted a major intercontinental connectivity project that adds value to India-Europe economic ties. Which corridor was explicitly cited? Option A, International North-South Transport Corridor INSTC. Option B, India Middle East Europe Economic Corridor IMEC. Option C, Bangladesh Bhutan India Nepal BBIN Corridor. Option D, Central Asian Flyway Trade Corridor.
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चलिए स्टैटिक जी के पॉइंट से थोड़ा देखते हैं। IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। IMEC कॉरिडोर को G20 न्यू दिल्ली समिट 2023 के दौरान ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। कहां पर अनाउंस किया गया था? न्यू दिल्ली समिट 2023 के दौरान। IMEC कंपोनेंट्स, इसमें दो कॉरिडोर्स हैं, ईस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ कॉरिडोर। ईस्ट कॉरिडोर कौन सा है? जो इंडिया को अरबियन गल्फ से जोड़ता है, इसको ईस्ट कॉरिडोर कहते हैं। ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया को अरबियन गल्फ से जोड़ता है, और नॉर्दर्न कॉरिडोर जो गल्फ को यूरोप से जोड़ता है। याद रखें, नॉर्दर्न कॉरिडोर जो गल्फ को यूरोप से जोड़ता है उसको नॉर्दर्न कॉरिडोर कहते हैं। चलिए INSTC के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। INST कॉरिडोर इंडिया, ईरान, अजरबैजान और रूसिया के बीच एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टीमोड रूट है। ठीक है, टू बी नोटेड की बात है, क्या है? इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इंडिया ने चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है जिससे सेंट्रल एशिया तक ट्रेड किया जा सके पाकिस्तान को बाईपास करके। ध्यान रहे, चाबहार पोर्ट ईरान में स्थित है। ठीक है, कहां पर पड़ता है? ईरान। और इसको डेवलप कौन कर रहा है? इंडिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको बाईपास करके बाकी देशों तक ट्रेड किया जा सकता है जो सेंट्रल एशिया में है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, कहाँ पर जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको डेली आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का, और 40-40 मिनट आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक, और 40 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए ताकि एनालिसिस कर सकें। ठीक, रखता हूँ, धन्यवाद।